हाँ, we basically it is due to the net problem. We I'm not able just to contact to all of you. Never even then. Now you listen to me as per it is the first time as you have been told by others कि this lecture is going to be uploaded in the university. I discussed and just I taught you about the medical record sign. Just you know it. Just I give the some summary which I have as far as the medical record is concerned. You you go through and try to understand what I am speaking. And if any questions, if I ask, you can just give the answer. And if you want to make any query, you also just you can ask to me. Yeah, I discuss what is actually medical record science. मेडिकल रिकॉर्ड साइंस की क्या डेफिनेशन है, क्या है? हाँ दीक्षा, आप बता सकते हो जो मेडिकल रिकॉर्ड साइंस की डेफिनेशन? Yes, sir. हाँ बताइए। So when the medical history of the patient is recorded, it is known as medical record. Yes, it is just you giving, लेकिन as per the definition is concerned, Bhavna, you can give the definition of medical record. Bhavna? Yes, sir. You can give the definition of medical record. The medical record is who, what, why, where, when, and how care rendered to the patient during hospitalization. Right, you are actually this is the main definition. मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड है क्या। इस मेडिकल रिकॉर्ड इज नथिंग, मेडिकल केयर है जो मरीज भर्ती होता है, भर्ती होने के बाद जो भी इवेंट्स होती हैं, जो भी उसे पूछता है डॉक्टर कंसर्न जिसके अंडर में भर्ती होते हैं, what is the symptomatic, why these all the things, it events is recorded in medical record. जो भी वो पूछते हैं, I think that as far as any information which is related with the medical care, जो डॉक्टर पूछता है, जो भी डॉक्टर मरीज एडमिट हो या न हो डजंट मैटर, लेकिन what happens with the message with the patient it should be recorded. ठीक है, अब इसमें हु कौन इलाज करता है, तो इसमें नो डाउट इट इज very clear कि under whom the patient is admitted, he treats the patient. उसमें डॉक्टर्स हो गए and they are as far as other what care is given, it is also कि क्या केयर दी गई ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड केयर क्यों दी जा रही है, उसका रीजन कि मरीज क्यों भर्ती हुआ, क्या हुआ, क्यों इलाज शुरू हुआ, ये पता लगता है। वह कहाँ इलाज मरीज का चल रहा है, ये इससे क्लियर इट शुड आल्सो बी मेंशन और स्वाभाविक इट इज द पेशेंट इज ट्रीटेड इन हॉस्पिटल, राइट, एंड व्हेन कब इलाज करने की जरूरत पड़ी एंड हाउ कैसे इलाज दिया जा रहा है, ये सारी चीजें इट इज डेफिनेशन में हाउ कैन रेंडर टू द पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। जब मरीज भर्ती हो जाता है डॉक्टर के अंडर, तो इससे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसमें अगर जैसी गो थी इस डेफिनेशन से आप समझें तो मेडिकल रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन है मेडिकल केयर है वो क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीजें होती हैं। जस्ट मैं आप ऐसे ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड जब कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका बेड टिकट या केस शीट बनती है। So these all the information is recorded. These all the information is recorded by the doctors and others who is responsible to give the care to the patient. समझ में आ गया? This is a हेलो हाँ हेलो तस्कीन। सर सर हमें ज्वाइन कर लिए तो लेट हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, अब आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ है ना, ठीक है तस्कीन? ठीक है। आप आवाज सुनिए, आप आवाज सुनिए, आवाज सुनाई दे रही सबको? हाँ, तस्कीन आपने ज्वाइन करो पहले।
क्लास। यस सर, हाँ ओके सर, ओके सर। हेलो। हाँ, मैं जस्ट मेडिकल रिकॉर्ड साइंस की जो डेफिनेशन उससे जस्ट आई एम गिविंग ओनली just as refreshing your mind what is in medical record science, and it is just I taught all the things up to this time. You have to be clear, and if you not started to read this subject, you try to read after taking this class, because this medical record science is very important as per the hospital administration is concerned. आज के समय में जब देख रहे हैं कोरोना का पीरियड है, उस समय मेडिकल रिकॉर्ड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और चूंकि आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर ये है तो मेडिकल रिकॉर्ड साइंस में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा, और तभी आप अच्छी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी एडवाइस दे सकते हैं एज पर द मेडिकल रिकॉर्ड इज कंसर्न, how it should be maintained in the hospital, and these are the things a doctor will also can ask to you, how I should maintain the records and what should I conclude in the information which is given by the patient and others. ठीक है, बात समझ में आई? हेलो सबको। Yes, sir. तस्कीन, हेलो, तस्कीन ने ज्वाइन किया? हेलो। यस सर। हाँ, वहाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड साइंस में क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था। अब मैं एज पर यूजेस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स आई डिस्कस नाउ व्हाट एज पर द पर्सनल रिकॉर्ड इज इम्पर्सनल शायद पढ़ाना है मुझे, ठीक है? मेडिकल रिकॉर्ड एज ए इम्पर्सनल डॉक्यूमेंट, I have given the notes to you, just go through this what I am speaking now. सब लोग देख रहे हैं? हेलो भावना, Yes. भावना, Yes, sir. सबको नोट्स मिल गए हैं ना? Yes, हेलो। sir. हाँ, तो आप जरा देखिए कि मेडिकल रिकॉर्ड एज ए पर्सनल डॉक्यूमेंट, जरा आप उस पर गो थ्रू वो लीजिए, मैं बताता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, जस्ट फॉलो टू मी, आई कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर यू हैव अंडरस्टूड ना, इसलिए सारे लोग ध्यान देके ही देखें, ठीक है? तस्कीन, हेलो तस्कीन, हेलो भावना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो एवरीबडी जस्ट लिसन एंड गो थ्रू द note which I have given to you. Medical record is also used as an impersonal document in group study purpose. Number one, statistical analysis. किस लिए मेडिकल रिकॉर्ड का यूज हो सकता है? स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस की मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि किसी स्टैटिकल मेडिकल स्टडी, हाउ मेनी पेशेंट इन कम इन हॉस्पिटल, कितने मरीज वहां भर्ती हैं इस समय, क्या ऑक्यूपेंसी रेट है, कितने मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, कितने मरीज हॉस्पिटल से चले गए हैं। दीज आर द थिंग इट शुड बी मेंटेन इन स्टैटिकल एनालिसिस। जब इनकी जरूरत होती है तो मेडिकल रिकॉर्ड का यूज इम्पर्सनल हो जाता है। इम्पर्सनल हो जाता है, ये हॉस्पिटल के यूज के रहता है, और चूंकि एनालिसिस होती है, एनालिसिस कैन बी एनीवेयर, एनीबडी कैन आस्क फॉर एनालिटिकल एनालिसिस, इट इज डन बाय द ओनली द मेडिकल रिकॉर्ड पर्सनल इन द मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ठीक है? दूसरा है क्लिनिकल टीचिंग। मेडिकल रिकॉर्ड जब मेंटेन होता है तो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे मेडिकल रिकॉर्ड पर्सनल हो, चाहे फिजियोथेरापिस्ट हो, चाहे वो डाइटिशियन हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस हों, हैं,
तो ये सारे लोगों को पढ़ाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो ये दीज आर क्लिनिकल टीचिंग इज कंसर्न एंड क्लिनिकल रिसर्च। अगर किसी तरह की रिसर्च करनी होती है, जैसे जैसे आई हैव गिवन द डिग्री एज पर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज कंसर्न, MS in surgery, MS in orthopedics, MD in medicine, and other especially. So everybody, as per the retrospective studies is concerned, which is only done by the medical records of the hospital. And no doubt कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स से ही सारी चीजें होती हैं। या मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह करते हैं। MS MD को जो भी टॉपिक अलॉटमेंट होता है उसके मरीज वो जाके मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखते हैं, और देन यू फाइंड आउट द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड प्रिपेयर द थीसिस एज फॉर। तो इट इज ए क्लिनिकल टीचिंग। सारी चीजें समझ गई भाई? भावना क्या समझी बताइए? भावना? Yes, sir. हाँ, क्या समझी? थोड़ा बताइए, आप हिंदी में ही बताएं जो क्या समझी। इन 3 चीजों को मैंने बताया कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, क्लिनिकल टीचिंग के लिए, क्लिनिकल रिसर्च के लिए। ठीक है, अच्छा मैं आगे पढ़ता हूँ फिर पूछता हूँ। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड कैन बी यूज इन ग्रुप स्टडी पर्पज। ग्रुप स्टडी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। दिस स्टडी में बी रिलेटेड with any one of the above that may be hospital static। इसके आगे दीक्षा पढ़िए आप। Yes, sir. हाँ, स्टैटिक के बाद पढ़िए आप। Related to research and publication of any paper. This record study may be used as a group study to effective teaching by the senior teaching staff. हाँ, तो पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये जो भी है, ये जो ये मेडिकल रिकॉर्ड है, इट इज जस्ट फॉर टीचिंग बाय द सीनियर टीचिंग स्टाफ टू द स्टूडेंट, मे बी द स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, MS MD के हो सकते हैं, MBBS के हो सकते हैं, ग्रेजुएशन के हो सकते हैं, अदर पैरामेडिकल स्टाफ भी हो सकते हैं, उनके भी सीनियर टीचर। जस्ट लाइक आई, whatever I teach you, whatever I explain here, it's only that due to the medical record which has been I've seen during my life period or medical record period. So just I'm telling these all the things, so just I can also, I'm just having the experience of this medical record, how it should be maintained and how it was maintained and what are the who are maintaining these all the things। तो ये केवल किस लिए कि जब जैसे आप मेरी जगह होंगे तो आपको भी उसी तरह अगर मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि अगर एनीबडी हु इज अ रिच पर्सन, not rich person in means economic, rich in medical information, successful person, who is a successful person in life, who is a rich inform, having a rich information। लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होता है? जिसके पास रिच इंफॉर्मेशन होती है। रिच इंफॉर्मेशन से मे बी मेडिकली, अगर इंजीनियरिंग का है तो मे बी इंजीनियरिंग एंड अदर एस्पेक्ट विच इज हैपनिंग आउटसाइड या जस्ट नियर इन डे टू डे लाइफ। इट्स वेरी क्लियर कि जस्ट यू हैव टू सी ऑल द occurrence which is happening around you, you have to be very cautious। जैसे इस समय कोरोना का पीरियड है, हम लोग भी यहाँ कोरोना में ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं, मैं भी नहीं निकल रहा हूँ। तो ये जो व्हाट है कि ये सब अराउंड मेरे आसपास ही हो रहा है, ऐसे ही आपके हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज नथिंग, इट इज इंफॉर्मेशन related, maybe the politically, maybe medically, maybe socially, these all the things। So just you have to be very cautious as medical record is concerned, because if you have such type of knowledge, no doubt you are rich in information, and same thing is happened with the medical knowledge is concerned। जो हो रहे हैं, अगर हॉस्पिटल मेडिकल गए हैं
तो यू हैव टू गो कि कोरोना का कर रहा है, क्या कारण है कोरोना फैला है, उसका क्या इलाज है, कौन कर रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, म्यूटेशन हो रहा है तो वेरिएंट क्यों चेंज हो रहा है. So these are the medical opportunity related and you go to 3. तो अगर आप इस तरह सब ध्यान रखेंगे तो मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा एंड यू कैन डिस्कस योरसेल्फ. मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट इन एडिशन टू व्हाट यू डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज वी जस्ट अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो है, दिस इज ओनली द पॉइंट which I'm discussing here. I'm just telling that point in detail. लेकिन सारी चीजें तो नहीं पता ही जा सकती हैं. जब आप ध्यान देंगे तो आप जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो यू कैन डिस्क्राइब मोर बिकॉज दैट नॉलेज विल रिच नॉलेज. मेरे साथ साथ वो आपकी नॉलेज होगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी और अच्छा होगा. इससे यू ट्राई टू जस्ट रीड दिस मेडिकल रिकॉर्ड साइंस आफ्टर getting this lecture because you what I am teaching you, it is also going to the upload. You can see at any time during your student period afterwards as per the medical record science. It is fortunate enough for you as well I am getting this uploaded in university site. You can now, this is not a problem. We are not getting the information at Google as per the medical record science is concerned. आप लोग जब भी ये चाहेंगे तो गूगल पे जाके आप यूनिवर्सिटी चैनल में जाके ये सारा लेक्चर देख सकते हैं. और ये कमी आप लोगों के कमी खालेगी नहीं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में क्या है, क्या चीज़ें हैं. अभी तक मैं क्लास में पढ़ाता था, अब ये सारी चीज़ें यू आर कैन गेट वेरी इजीली. तो वेरी थिंग इज इम्पोर्टेंट, योर प्रेजेंस इज वेरी एसेंशियल. आपकी प्रेजेंस भी बहुत जरूरी है. वो रिकॉर्ड हो रही होगी यूनिवर्सिटी में. ठीक है, इसमें लेक्चर्स में इसलिए भी कोर्सेज और सब कुछ एडवाइज कर दिया. सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लें कि उनकी भी अटेंडेंस लग जाएगी. ठीक है, नहीं अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्लियर है हो जाएगा कि दे आर नॉट पेइंग देयर अटेंशन एज फार द क्लास इज कंसर्न. समझ गए भाई सब लोग? हेलो तस्कीन, समझी? फैजल? यस सर. कामनी? कामनी? Yes, sir. Yes, sir. दिव्या? भावना? Yes, sir. तान्या? Yes, sir. तान्या समझी? Yes, sir. गौरव? गौरव Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए भाई? आगे जस्ट यू लिसन टू मी. सीनियर टीचिंग स्टाफ आगे कंटिन्यू करें. दीक्षा? Yes, sir. In such cases, medical record officer does not need any permission to exercise such caution as when used as personal document because it has no connection with the patient as an individual. हाँ, इसमें एज पर द मेडिकल, आप सपोज आप मेडिकल रिकॉर्ड अफसर हो तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए यू हैव टू पे योर अटेंशन. Whenever anybody comes to ask you as far as the case sheet is concerned, medical record is concerned, then being as a medical record officer, because you have to follow the orders of the hospital administrator where you are working, what instructions, what orders has been given by them, saying that you are only supposed to whether record can be given or not, rather than you know the position of the record and who is coming just to take the record in your up to you. You have to be very cautious, and after thinking all the and from other thinking all the aspect of medical record is concerned, then you issue the medical record to that in personal documents is concerned. Personal documents मरीज भी आ सकता है, ठीक है, और मरीज के अलावा भी आउटसाइडर्स आ सकते हैं जिन्हें ये मालूम है कि मरीज भर्ती रहा है, इनके बारे में पता लगाएं. तो आप लोगों को ये सोचना पड़ता है कि इनको दे तो उसमें रिटन परमिशन लेते हैं और रिटन लेटर लेते हैं, फिर सारी चीज़ें आप देख के तब आप रिकॉर्ड देते हैं और ये मेंटेन करते हैं कि हम रिकॉर्ड दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं.
ये सारी चीजें यू हैव टू मेंटेन, यानी मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर इज वेरी कॉशियस अबाउट इट। लेकिन इम्पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तस्कीन? तस्कीन, तस्कीन, भावना भाई समझ में आया? Yes, sir. हाँ पढ़िए आगे। Whenever doctors, nurses, and trained medical record personnel use the medical record, they are governed with the code of secrecy. They will not divulge any information mentioned in medical record to others because it is personal document unless anybody wants to take deliberately who have knowledge of information. हाँ तो ये बेसिकली कि जब मेडिकल रिकॉर्ड पर्सनल जानते हैं, हॉस्पिटल में जानते हैं, अगर वो लेते हैं तो उन्हें मालूम है कि अगर हम दे रहे हैं तो कोड ऑफ सीक्रेसी है वो मेंटेन करते हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें देने में सीक्रेसी की मेंटेन रखते हैं पर्सनल रिकॉर्ड्स में। लेकिन इन पर्सनल रिकॉर्ड्स में यू हैव टू पे अटेंशन टू मच रेदर देन अदर। ठीक है, तो इसलिए इम्पर्सनल और पर्सनल में यह है कि जब आप दूसरे को देते हैं, किस पर्पज से देते हैं, तो आप उतने कॉशियस इसलिए नहीं होंगे कि जिन्हें आप दे रहे हैं वो उनको मालूम है कि हम जो ले रहे हैं उसको लीक नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर डॉक्टर इज कमिंग फॉर यू जस्ट टू आस्क फॉर KCT or BST is concerned, for thesis purpose, no doubt the use of your medical record will be only for just study purpose. The study purpose means group purpose. ना आप इम्पर्सनल हो गया कि वो रिसर्च के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे तान्या आप पढ़िए। तान्या, तान्या, Yes, sir. पढ़े आगे। Okay, sir. Suppose in any hospital, हॉस्पिटल डॉक्टर A wants to use the records of patient admitted under Dr. and डॉक्टर Dr. बी B and Dr. C for group study purpose. Then Dr. A is supposed to take permission of Dr. B and Dr. C. हाँ, तो बेसिकली इसमें सपोज हॉस्पिटल में डॉक्टर ए हैं, वो डॉक्टर बी और डॉक्टर सी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं हॉस्पिटल में ही, तो उसमें डॉक्टर ए जो चाहते हैं रिकॉर्ड, उन्हें डॉक्टर बी और डॉक्टर सी से परमिशन ले लेनी पड़ेगी, उनको बता देना पड़ेगा कि हमें ये रिकॉर्ड इस पर्पज के लिए चाहिए। राइट, तो अगर दीज आर द थिंग्स इज आल्सो discussing as per the doctor who wants to take the record, he will also get the permission or can be informed to the डॉक्टर बी एंड सी। तो अब आप समझ गए, अगर उसको भी चाहिए तो थोड़ा परमिशन, इंटरनल परमिशन ले लेते हैं वो रिकॉर्ड देखने के लिए। तो इम्पर्सनल रिकॉर्ड समझ में आ गया सबको? क्यों भाई, समझ में आया? गौरव, ईशिका, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो as far as now you understand what is the impersonal value of medical records and what is the personal, just I discussed, just you tell you in the use of medical records, and now I will come to the value of medical record. ठीक है तस्कीन, समझ में आया तस्कीन? फैजल, फैजल, यस सर। समझ में आ गया? आया कि नहीं भाई फैजल? यस सर। आगे मैं अब आई एम गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ फैजल आप पढ़ें।
values of medical record. फैजल, कामनी आप सुन रही हैं? Yes, sir. हाँ तो आप पढ़िए, फैजल सुन नहीं पा रहे हैं। कामनी आप पढ़िए। Medical record are important purpose to get record and record members. The record is reliable to many individual group patient, physical, physicians, healthcare institute, research team, teachers and students, हाँ, टीचर their health agencies and international health organization. The following list summarization important aspect of medical record to each of these users. हाँ बेसिकली मैं पढ़ रहा हूँ कामनी, ठीक है, सुनिएगा। मेडिकल रिकॉर्ड आर इम्पोर्टेंट, records are important. People forget and record remember. So it is a very clear cut just opinion कि अभी पे पेशेंट हैज गॉट द एडमिशन, अगर उसने एडमिशन लिया है तो वो इलाज के बारे में भूल सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं उसे भूला नहीं जा सकता है। एंड वो रिकॉर्ड के पास सारी चीजें डिटेल्स होती हैं, तो इसीलिए कि पीपल फॉरगेट बट रिकॉर्ड रिमेंबर, एंड नो डाउट द रिकॉर्ड इज विद यू. So just you know all the information related which is mentioned in case sheet. All the information जो इलाज के दौरान हुआ वो आपके पास सारा रिकॉर्ड है. मरीज जब वो आता है तो उसे सब नहीं मालूम होता कब, अगर वो आवे या डिस्चार्ज स्लिप अगर कि at the time of the patient when discharged from the hospital you get the discharge slip. So detailed summary is given also in discharge slip, and whenever he comes to ask for a record वो डिस्चार्ज स्लिप लेके ही आते हैं, जिसमें आप डिस्चार्ज इज नथिंग, इट इज अ समरी ऑफ द ट्रीटमेंट कंसर्न, कब मरीज आया, किस लिए आया, क्या उसको डायग्नोसिस थी, क्या इलाज किया गया, क्या जांचें हुई, ये सारी चीजें मेडिकल रिकॉर्ड से, और फिर इलाज कराने के बाद ठीक हो गया, फिर छुट्टी हो गई. तो दीज आर द मेंशन इन डिस्चार्ज स्लिप. एंड व्हाट द रीजन, इट इज आल्सो हेल्पफुल टू द hospital concerned, means medical record officer he can, after taking the discharge slip where the hospital number is given, can get the file and also can discuss what he want to do it. तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड्स की वैल्यू है. अगर मेडिकल रिकॉर्ड की वैल्यू अगर ना हो, ये सारी चीजें मेंटेन की जाए, इसके माने मेडिकल रिकॉर्ड्स का जो इलाज है या मेडिकल मरीज का जो इलाज है, जब मेडिकल रिकॉर्ड की बात मैं करता हूँ तो मेडिकल रिकॉर्ड केयर इज नथिंग, मेडिकल रिकॉर्ड इज डॉक्यूमेंट. जब डॉक्यूमेंटेशन है वो मेडिकल केयर का ही डॉक्यूमेंटेशन. मेडिकल रिकॉर्ड इज नथिंग, इट इज अ मेडिकल केयर व्हेन इट इज अ डॉक्यूमेंटेड. जब मेडिकल केयर को लिख दिया जाए, जो भी डॉक्टर करते हैं अगर वो लिख देते हैं, जो इलाज करते हैं, मेरा करने का मतलब जो इलाज करते हैं, जो इलाज करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अगर सारी चीजें क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो these are just I told you that when patient comes in the hospital, he is admitted and treatment is started by the doctor concerned as soon after taking the clinical examination of the patient, because as the provisional diagnosis is there, provisional diagnosis clinical examination मरीज को देखने के बाद डॉक्टरी इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं. वो on the basis of clinical symptom which is present in the patient who has been admitted for the treatment. ठीक है, तो वो अब उसके बाद जब पॉइजन डायग्नोसिस के बाद इलाज पक्का कब होता है, दीक्षा बताएं, उसी कौन सी डायग्नोसिस कहते हैं? हेलो दीक्षा. अच्छा चलिए, दीक्षा सुन रही हो? हेलो. यस सर. हाँ, ये प्रोविजनल डायग्नोसिस के बाद कौन सी डायग्नोसिस होती है जिससे पूरी तरह इलाज शुरू करते हैं डॉक्टर?
फाइनल डायग्नोसिस, ठीक है। कंफर्म डायग्नोसिस जैसे मैंने बोला है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर शुरू कर सकते हैं, और फाइनल डायग्नोसिस जब कर लेते हैं, फाइनल डायग्नोसिस कब होती, with the when the pathological and radiological investigation is advised by the doctor, and after getting the report of the pathological and radiological with the help of a clinical examination which has been done by the doctor concerned under whom the patient is admitted, he just makes the final diagnosis. After getting this all the report, doctor makes the final diagnosis, and then treatment is started. After that, he also confirmed on the basis of confirmed diagnosis, a treatment is started, which is let down in all the things in should be let down in the all the मेडिकल रिकॉर्ड में के स्टेट में ये सारी चीजें होती हैं, मेंशन होनी चाहिए। और चूंकि सब जब आप ये पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप यू कैन एडवाइज, यू कैन जस्ट make your request to the administrator of the hospital. It should also be maintained in the medical record. And you can also just meet out to doctors and those who are just under whom the patient is admitted. You can also request to them to maintain this sort of a medical record, right? अगर सारी चीजें आप जानती हैं मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में, तो आप डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से भी आप एडवाइज कर सकते हैं कि ये चीजें तो मेडिकल रिकॉर्ड्स में मेंटेन होनी चाहिए, तो होगा, ठीक है। अब पेशेंट को क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। पहला है पेशेंट के लिए, हेडिंग पढ़िए, पेशेंट एंड पास प्रेजेंट एंड पास स्टेट ऑफ हेल्थ। जो मरीज भर्ती हो उसकी पिछले की क्या हिस्ट्री है, और पास आप प्रेजेंट की क्या हिस्ट्री है, और पास की क्या हिस्ट्री, ये लिखा होता है, ठीक है। सेकंड, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट इलनेस इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। एनालिसिस अगर करते हैं मरीज की, तो वो इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस एंड ऑल द डिटेल्स इज मेंटेन इन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट इलनेस इन द टाइप ऑफ डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। किस तरह की डायग्नोसिस है और किस तरह का उसको प्रोग्नोसिस इम्प्रूव हुआ, ये सारी तरह डिटेल लिखे होते हैं। तीसरा है कंसल्टेशन ओपिनियन। ऑन द वे मरीज को कंसल्टेशन ओपिनियन भी दे देते हैं। अगर मरीज आया है तो पुराना रिकॉर्ड देख लेते हैं कि उसको क्या बीमारी रही है और इस समय क्या है, तो वो थोड़ा कंक्लूड करके उस पुरानी बीमारी से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये देखने के बाद मरीज को एडवाइस कर देगा, ठीक है। सर्व एज रेफरेंस, ये मरीज डॉक्टर्स को ये सर्व एज ए रेफरेंस, ये डॉक्टर्स के लिए रेफरेंस होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा कि उसे इलाज कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो रिकॉर्ड देखने के बाद। दूसरा, ये सारी चीजें फायदे किसके लिए हो रही हैं, मरीज के लिए हो रही है ना। फिफ्थ पॉइंट है, ओल्ड रिकॉर्ड एनेबल्स फिजिशियन एंड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस इलनेस। जब ओल्ड रिकॉर्ड डॉक्टर देख लेता है उस मरीज को, तो उस मरीज का, तो वो फिर रिव्यू करता है और एनालाइज करता है कि हमें प्रीवियस इलनेस से इसका कोई रिलेशन तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो अपने हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शो करता है, मीट आउट करता है। लेकिन जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, दिस इज रिकॉर्डेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये मरीज को फायदे के लिए, कि अगर मरीज का पुराना भर्ती हुआ रिकॉर्ड है तो वो तुरंत इलाज भी शुरू कर सकता है, ठीक है। सिक्स में है ना, क्विक ट्रीटमेंट रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ स्टे। आप ज्यादा समय ना लगे, इसलिए पुराना अगर रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड देख लेगा कि क्या उसे मेडिकल केयर दी गई है, सारी चीजें देख लेगी, तो वो बिना समय गंवाए हुए इलाज शुरू कर सकता है। वरना तो फिर उसे जांच कराएं, फिर फाइनल डायग्नोसिस बनाएं, उसके बाद इलाज शुरू, इसमें टाइम लगता है। तो बिना टाइम बर्बाद करे डॉक्टर रिकॉर्ड देख के ही इलाज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एलर्जी एंड ड्रग रिएक्शन, और बेस अगर कोई पिछले रिकॉर्ड में मेंशन होता है कि इस दवा से इसको रिएक्शन था, वो सारी मेंशन होता है, तो वो चीज़ देखने के बाद वो इलाज कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस सर्जिकल प्रोसीजर आर रिकॉर्डेड। अगर मरीज सर्जरी साइड में भर्ती हुआ तो किस लिए भर्ती हुआ था, उसको कौन सा ऑपरेशन हुआ था, क्या प्रोसीजर था, ये सारी चीजें केस शीट में होगी। तो उसे देखने के बाद वो अगर ऑपरेशन करने के लिए आता तो किस लिए आता, वो सारी चीजें आती हैं। तो पुराने ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए वो दूसरा ऑपरेशन या अगर जरूरत होती तो करता है,
ठीक है। इसमें 9 पॉइंट है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर प्रिस्क्रिप्शन। अगर पहले दवा दी गई उसे फायदे की गई तो ज्यादा वो प्रिस्क्रिप्शन एडवाइज नहीं करते। अननेसेसरी सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, अगर पहले ऑपरेशन किया हुआ मरीज का ये सारी मेंशन होता है तो ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं। यानी अगर एक चीज का ऑपरेशन हो चुका हो, उसे मालूम है कि इसका ऑपरेशन है, तो डॉक्टर या सर्जन बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं कर, जब वो सर्जरी करता है तो बहुत हिस्सा नहीं खोलता है। जहाँ का हिस्सा भी होता है अगर वो रिलेटेड है तो उसमें प्रोसीजर होता है कि क्या ऑपरेशन हुआ है। जब उसे मालूम होगा इसका ऑपरेशन हो चुका है तो वो ज्यादा ऑपरेशन में पार्ट को खोलने के एलोबरेट नहीं करता है। एलोबरेट करने का मतलब जो जिसकी जरूरत है उतने ही भाग को वो खोलता है और ऑपरेशन करता है। बहुत ही है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है और पहले भी कोई सर्जिकल ऑपरेशन करा चुका है तो फिर वो गॉल ब्लैडर का ही एरिया चूज करके वो निकाल देंगे। इससे बहुत ज्यादा खोल के नहीं देखते हैं। ठीक है, ये फायदा किसको होगा? डॉक्टर्स को होगा। एंड 10th पॉइंट है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लीगल एक्शन। मरीज जो क्या है लीगल एक्शन से भी बचाता है। अगर वो मरीज किसी के ऊपर कोई केस है, सारी चीजें हैं, तो वो उसे लीगल प्रोटेक्शन के मेडिकल रिकॉर्ड का लीगल इंपॉर्टेंस भी होती है। और लीगल इंपॉर्टेंस के मरीज भर्ती हुआ कैसे हुआ ये सारी चीजें उसमें मेंटेन उसे हेल्पफुल होती है लीगल थिंग। मेडिकल रिकॉर्ड्स में लीगल इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि व्हाट इज द लीगल इन्वॉल्वमेंट मींस लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मेडिकल रिकॉर्ड व्हिच इज वो पेशेंट हु हैज एडमिटेड, बिकॉज मेडिकल रिकॉर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट टू, इसलिए इसमें लिखा है कि उसे प्रोटेक्ट फ्रॉम लीगल एक्शन। 11th पॉइंट, assist kith and kin in property litigation। अगर मरीज को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो रिकॉर्ड की वजह से उसे सक्सेशन राइट जो है वो मरीज को फायदा हो सकती है। यानी उसके घर में जो है उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, मैं पहले भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में कि उसको प्रॉपर्टी में जाना था तो वो सारी चीजें डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हॉस्पिटल से मिल जाता है तो एज ए सक्सेशन वो सक्सेसर बन जाता है, उसे सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द पेशेंट गेट द एडमिशन इन हॉस्पिटल। जैसे यू कैन टेक एग्जांपल, कोरोना के केसेस में कोई मरीज भर्ती हुआ है, तो अगर कोरोना के केस में वो मर गया है, डेथ हो गई है उसकी हॉस्पिटल में, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने ये करा कि जो कोरोना से भर्ते हैं तो उनके जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको फैमिली को पैसा है और 30 लाख रुपए कुछ ऐसा भी दिखा है, तो दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द medical record which is maintained in the hospital, because no proof is there the patient died due to the corona. It is a clear cut information will be given in the case sheet of the patient who admitted in the hospital as a corona patient in concern. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बहुत से केसेस हैं आगे चल के कि मैं भी कोरोना में भर्ती हुआ, मेरा भी कोरोना हुआ, तो ये सारी चीजें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, केवल हॉस्पिटल के केस शीट से ही पता लगेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो अनाउंस करा है कि मैं इतना पैसा दूंगा, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड विच इज मेंशन इन द हॉस्पिटल। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर द पेशेंट which is maintained by the doctor concerned where the patient is admitted. समझ में आ गया? क्यों भाई? हेलो ऑल ऑफ यू, इसका सुन रही हो? यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? दीक्षा, तान्या, अभिषेक, फैजल, कामनी? यस सर। हाँ, कुछ पूछना है? तस्कीन, दिव्या, कुछ पूछना है? दिव्या? नो नो सर। आ गया सब समझ में? सर हाँ, यस सर। जस्ट ये जो मैंने समझाया है, you just can also elaborate in your notes whenever just you prepare. Just today you know, just prepare the notes in addition which I am telling you कि जो एडिशन में जो बढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो एडिशन में लिखना है। आज अगर आप लिख लोगे तो सब याद रहेगा और कल के लिए छोड़ोगे तो भूल जाओगे। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन, वो आप नोट कर लीजिएगा और तभी आप मेरे क्वेश्चंस को मेरे साथ और ऐड कर सकते हो। आपका आंसर विल बी मोर
क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है। हाँ, अब Okay, नेक्स्ट। sir. नेक्स्ट है किसके फायदे के लिए, फिजिशियंस के लिए क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसको आप तस्कीन सुन रही हो, तस्कीन, तस्कीन, इसका आप सुन रही हैं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिजिशियन जरा आप आगे पढ़िए, पढ़ेंगी, मैं Yes, अच्छा sir. पढ़ता हूँ। हाँ, आप पढ़िए अच्छा इसका। Yes, sir. हाँ पढ़िए बेटे, पहला पॉइंट पढ़िए आप। Physicians. ये यील्ड्स, पहला word नहीं समझा. हाँ ये YELDS, यील्ड्स, Yields to practice to give information about purpose, treatment, previous reaction, treatment, previous previous treatment, treatment, हम्म, reactions, हम्म, allergies, drugs, हम्म, in, investigations, investigations, methods of treatment, and results of care. ठीक है। सेकंड, Suggests newer line of investigation and treatment, ठीक है। and treatment. हाँ, तो ये मैं जरा 2 पॉइंट ये डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें ईट्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस ट्रीटमेंट, रिएक्शन, एलर्जी, ड्रग्स, इन्वेस्टिगेशन। ये अब अगर किसी मरीज कोई डॉक्टर के अंडर में भर्ती होता है तो डॉक्टर के लिए फायदा ये है कि वो देख लेता है कि वो इसमें जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एज पर मेडिकल केयर इज कंसर्न, कि उसमें जो इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रीवियस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कि पिछली बार जब भर्ती हुआ तो क्या किया गया, एंड रिजल्ट ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट किया उसके बाद कोई दवा रिएक्ट तो नहीं की, किसी तरह की एलर्जीज तो नहीं थी, कौन कौन सी दवाएं दी गई, कौन कौन की जांचें की गई, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, तो डॉक्टर्स के लिए फर्दर ट्रीटमेंट करने के लिए आराम हो जाता है। समझ गए पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सजेस्ट न्यूअर लाइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। पुराने को देखने के बाद डॉक्टर ये करता है कि अब कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस मरीज की हो पाए और प्रॉपर क्वालिटेटिव नेचर ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स फॉर द क्लिनिकल इफेक्ट। इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, डॉक्टर इवैल्यूएट कर सकता है कि कौन सी दवा दी गई है फॉर क्लिनिकल एक्टिविटी, अगर हम ये दवा दे सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, ये डॉक्टर्स के लिए फायदेमंद है मेडिकल रिकॉर्ड, ठीक है। आगे पढ़िए आप दीक्षा। दीक्षा, Yes, sir. हाँ आगे पढ़ें आप, थर्ड पॉइंट पढ़ते जाइए आगे, थर्ड पॉइंट नहीं आप पढ़िए। Information about availability of newer drugs to of patients. इवैल्यूएशन, थर्ड में इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, Evaluation of drugs for the clinical effect. पढ़ती जाइए। Fourth point, information about availability of newer drugs of patients. Fifth, comparative studies. कंपैरेटिव स्टडीज, मेडिको लीगल कंसर्न्स, Teaching and research. अब जब मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ, तान्या सुन रही हो? तान्या, Yes, sir. सुन रही है ना? Yes, sir. हाँ, इवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स फॉर द क्लिनिकल इफेक्ट, वो डॉक्टर इवोल्यूट कर सकता है ड्रग्स को कि ये किस तरह में कैसे फायदा है, कौन सी मूल्यांकन कर सकता है कि कौन सी दवा ठीक रहेगी, कौन सा इलाज ठीक रहेगा, ये सारा एवेल्युएट करके फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फोर्थ, इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर ड्रग्स फॉर पेशेंट, ठीक है, उसमें न्यूअर ड्रग्स की कौन सी नई दवा दी जा सकती है डॉक्टर सोच सकता है। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडीज की पहले इलाज किया गया है तो डॉक्टर ये कर लेगा कि अब जो इलाज कर रहे हैं उसमें कौन सा बेटर, वो कंपैरिजन कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड विच इज अवेलेबल टू द डॉक्टर्स, ठीक है। एंड सिक्स्थ, मेडिको लीगल कंसर्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, मेडिको लीगल केसेस इज कंसर्न। मैं थोड़ा सा अभी बता रहा था कि कोरोना के पीरियड में
सपोज कोरोना के पीरियड में कोई मरीज है, वो कह देता कि मरीज क्या है, अगर वो मरीज एक्सपायर करता है तो उसके फैमिली मेंबर वहाँ हॉस्पिटल में वो जाएंगे कि भाई मेरा मरीज कोरोना में भर्ती हुआ था, मर गया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है, अगर उसे मान लीजिए वो उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसे नहीं दी जा सकती कि आप कोरोना के मरीज में पेशेंट थे, आपके रिलेशन या रिलेटिव या बच्चे फैमिली मेंबर्स नहीं, उसका रिकॉर्ड है, ऐसे समय में इम्पोर्टेंट डॉक्टर के लिए हो जाता है वो मेडिकल रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर रिकॉर्ड नहीं देंगे तो द पर्टिकुलर पर्सन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ and ask if this particular my patient was admitted in the hospital but no certificate given as far as the patient was corona or not. My father was. Anybody can, children can, their wife can be. Those are the family members of the patient. They can move to the courts of litigation. तो इन सब बचने के लिए डॉक्टर्स को फायदा है, अगर रिकॉर्ड है तो ये लिटिगेशन से भी बचा जा सकता है। तो दिस इज अ मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंड टीचिंग एंड रिसर्च, टीचिंग और रिसर्च, जब वो आप कोई डॉक्टर जो है, अगर आप मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो वो मेडिकल रिकॉर्ड्स की भी देखने के, उनके पास जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, वो सारी चीज़ें कि उनके पास रिसर्च का रिजल्ट होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ाने के काम आती हैं। तो टीचिंग एंड रिसर्च के लिए भी डॉक्टर्स के लिए फायदेमंद है, ठीक है। समझ में आ गया भाई सबको? हेलो? Yes, sir. यस सर। कुछ पूछना है फैजल? फैजल? नो सर। तस्कीन है कि चली गई? तस्कीन? क्यों भाई तस्कीन? दिव्या? यस सर। सुन रही हो कि समझ में कुछ पूछना है? पूछ सकती हो, हिंदी में ही बोल लो, कोई बात नहीं, तो भी चाहे हिंदी में बोलें, जरूरी नहीं है मैं जरूर बोल देता हूँ हिंदी इंग्लिश में, आप ही हिंदी में अगर कुछ पूछना है। दिव्या? सर समझ में आ गया। नो सर। आ गया? इश्का? यस सर। तस्कीन? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आ गया। कुछ पूछना है? No, sir. नहीं। अभिषेक? यस सर। कुछ पूछना भाई? नहीं सर। कामनी? Yes, sir. पूछना है? No, sir. No, जोर sir. से बोलो कामनी। Yes, sir. कुछ पूछना है? नहीं, sir. हेलो? अच्छा, भावना आपको? भावना? No, sir. नो। No, sir. ठीक है, अब नो। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तस्कीन आप पढ़ेंगी? तस्कीन आप पढ़ें? हेलो? सर आई थिंक वो क्लास में नहीं है सर। नहीं है? अच्छा, तान्या आप पढ़ें? Yes, sir. Okay. हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। Yes, sir. Okay. Evaluating the competency of medical nursing and ancillary staff, quality insurance, justifying the result of treatment. Third, medico-legal purpose. Fourth, defense in malpractice suits. Fifth, basis to preparing operating budgets. Sixth, administrative control over fundamental activities. Seventh, basis for distribution of expenses when computing cost of operation. Eighth, statistical data to assist in controlling bed allocation, infection and
mortality rate and length of stay. Ninth, planning of additional staff and equipment as well as improving improving medical medical education and patient अच्छा, care. हाँ मैं जरा सा आप सब लोग सुनिए, मैं उसे क्लियर करता हूँ पॉइंट, ठीक है ना। इसमें द इवेल्युएटिंग द कॉम्पिटिशन ऑफ मेडिकल नर्सिंग एंड एंसिलरी स्टाफ, इट मीन्स ये कि एज पर यू ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर किसी हॉस्पिटल में हेल्थ इंस्टीट्यूशन केयर इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल हुआ कि जहां मरीज भर्ती होता है, उसमें इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स ही कैन evaluate as per the competency of doctor concerned where the patient is admitted, under whom patient is needed, what the nursing care has been provided to that patient. It is also mentioned, and as well as ancillary staff is concerned. Ancillary staff is concerned, paramedical staff who is working. Who is also giving the cooperation in the treatment of the person. I just discussed all the time as per doctor is no doubt a main, and doctor is responsible for the treatment, but doctor is not only responsible, whatever he does on the basis of other radiological and pathological, radiologists and pathologists की रिपोर्ट पे पैथोलॉजिस्ट की हेल्प लेके, और साथ साथ नर्सिंग स्टाफ है इनका, ये सब क्या करते हैं, तो डॉक्टर्स के साथ जितने लोग हैं वो हॉस्पिटल उस मरीज के बारे में इवैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा, जस्टिफाइंग द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, बेड का रिकॉर्ड के बेसिस पे इलाज अच्छा हुआ है, ये इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल खुद ही जस्टिफाई कर सकता है। एंड थर्ड इज अ मेडिकल लीगल पर्पज, जब सारी चीजें ठीक ठाक जस्टिफाइड होती हैं तो हॉस्पिटल में निश्चिंत हो गए, एवरीथिंग इज अ मेडिकल रिकॉर्ड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इफ द पेशेंट हैज admitted in the hospital, his medical record has been maintained properly or not. Because if the medical record is not properly, then question can be asked by the hospital admission, what sort of the treatment has been given to the patient during the hospitalization of the patient. जैसे मैं अभी बात में भी डिस्कस कर रहा हूँ कि सारी चीजें अगर कोरोना का ही है, तो कोरोना केस में अगर उसमें लिखा कि गवर्नमेंट ने कहा कि मैं 30 लाख दूंगा, तो गवर्नमेंट ऐसे 30 लाख नहीं बांट देगी, जो जाए एप्लीकेशन दे दे कि भैया हमको 30 लाख चाहिए, हमारे गार्जियन भर्ती हुए थे, तो हमारे फादर भर्ती हुए थे, ठीक है, वो जो भी देगा, फर्स्ट द इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, whether the patient was admitted and actually he was admitted and diagnosed as a corona. And this is only the certificate can be given by the doctor, hospital authorities concerned, when required medical record is maintained by the doctor, by the hospital, not a doctor, by the hospital, whether actually that patient was admitted and diagnosed with corona and patient died due to the whatever the reason is there, it is also be discussed in the medical record which is mentioned. Lekin as far as the hospital is concerned, he will be liable to give the answer to the court of law. So this is very important for medical legal purpose as per medical record which I discuss time to time. ठीक है, समझ में आया भाई? फैजल, हाँ तस्कीन, तस्कीन भाई बोल नहीं रही है। अच्छा फैजल, लगता तस्कीन है नहीं क्या? तस्कीन, तस्कीन, क्यों भाई तस्कीन सुन रही है? तस्कीन, यस सर। आप सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर, सुन रहे हैं। तो मेडिकल लीगल पर्पस समझ में आया? आप बताएं मेडिकल लीगल में क्या समझिए, कोरोना का जो मैंने उदाहरण दिया अपने शब्दों में बताएं हिंदी में। मेडिकल लीगल केसेस सर एक होमिसाइडल होते हैं, एक सुसाइडल केसेस होते हैं, दो केसेस होते हैं, होमिसाइडल एंड सुसाइडल केसेस। होमिसाइडल में होमिसाइडल मीन्स होता है हत्या करना, और सुसाइडल मीन्स होता है आत्महत्या करना। हत्या करना जैसे किसी को गोली मार देना, किसी को तकिया से मुंह दबा के मार देना, और आत्महत्या फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, ये सब आत्महत्या होते हैं।
वो मतलब कि सुसाइडल केसेस होते हैं। हाँ, लेकिन मैं तस्कीन पूछ रहा हूँ, मैंने बताया था कि कोरोना के केस में अगर मरीज भर्ती होता है तो ये मेन जो बात है कि मेडिकल रिकॉर्ड से ही गवर्नमेंट से जो भी अथॉरिटी होगी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, वो हॉस्पिटल अथॉरिटी से पूछेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। तो मैंने ये कोरोना के केस में बताया कि वाई इज ए पेशेंट दिस मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ कोरोना पेशेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर द हॉस्पिटल वेयर द ट्रीटमेंट वाज गिवन। ठीक है, कि क्यों दिया गया मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, इसके बारे में पता है। तो आपको कुछ इसका क्लियर था हुआ कि नहीं? सुना था हमारा ये पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे तस्कीन? हाँ सर सुना था, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए क्लियर आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके सर। ठीक है हाँ सर। फैजल, आपकी समझ में आया? फैजल, यस सर। यस हाँ, सर। कुछ पूछना है भाई? पूछना है नो कुछ सर। है? नो, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, डिफेंस इन मेल प्रैक्टिस सूट। डिफेंस इन मेल प्रैक्टिस सूट, अगर किसी ने जानबूझ के मेल प्रैक्टिस सूट दाखिल कर दिया कि इलाज ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, हॉस्पिटल ने ध्यान नहीं दिया, अगर इस तरह का वो कोई रिट कोर्ट में जाता है, वो आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड इंस्टीट्यूशन के पास है और मेंटेन हुआ मेडिकल रिकॉर्ड, तो उसका वो पिटिशनर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड पूरी तरह हुआ है। So he can justify in the court of law when the patient was admitted in the hospital, the treatment was given a qualitative in nature, which is mentioned in the medical record of basis of that file. उस मरीज की सारी चीजें हॉस्पिटल के पास हैं, इसलिए अगर कोई करता भी महसूस तो हॉस्पिटल या डॉक्टर या कोई उसे खास बात नहीं है, वो कैन प्रूव कर सकता मरीज भर्ती हुआ, उसका इलाज ढंग से हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड विच हैज बीन मेंटेन। Just I tell you all the time, the quality of medical record is very essential, because as quality of medical record is maintained by the hospital, no doubt he will not be able he will be able to give the answer before the court. I'm not everything is clear in my case. It patient was admitted, the treatment was given by the doctor concerned under whom the patient was admitted, and all the what the treatment has been given, it is also mentioned in that medical record which is maintained by the doctor in the hospital. ठीक है, तो ये सारी चीजें मेल प्रैक्टिस सूट में अगर वो करता है तो भी उससे हॉस्पिटल बच जाएगा। ठीक है, फिफ्थ इज है कि बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग बजट, कि किस तरह के ऑपरेशन में अगर मरीज ठीक हो रहा है तो अब ऑपरेशन में कितना पैसा इन्वेस्ट करा जाए, क्या हुआ प्रिपेयरिंग बजट की, कितना और हो जाए, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल। सिक्स है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर फंडामेंटल एक्टिविटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर ये मेडिकल रिकॉर्ड अच्छी तरह मिलता है तो देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा किस पे, फंक्शनल एक्टिविटीज में, कि इलाज में कौन इलाज कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें और उसके सारे apparatus मशीन सारी चीज हैं कि नहीं है, वो आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट ट्रीटमेंट इज गिवन, वो देख के कर सकता है हॉस्पिटल अथॉरिटी। ठीक है, दूसरा है बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस व्हेन कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। और ये सारे मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद कोई भी हॉस्पिटल ये कंप्यूट कर लेता है कि उसको इलाज करने में कितना पैसा खर्च हुआ है, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड विच इज मेंटेन्ड बाय द हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा टू असेस द कंट्रोलिंग बेड एलोकेशन, कि बेड एलोकेशन कितने बेड्स हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने नहीं भरे हुए हैं, कितना अगर हुआ तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, क्या मोर्टेलिटी रेट है, कितने मरीज की डेथ हो गई है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, क्या मोर्टेलिटी रेट है, क्या हॉस्पिटल में लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन मरीज रहा, ये भर्ती रहा, ये सारी चीजें बेड टिकट से हॉस्पिटल को मिल जाती हैं। नाइन्थ, द प्लानिंग ऑफ एजुकेशन स्टाफ एंड इक्विपमेंट एज वेल एज इम्प्रूविंग मेडिकल एजुकेशन एंड पेशेंट केयर। और एडमिनिस्ट्रेशन प्लान भी कर सकता है कि किस तरह इलाज करा जाए, क्या क्या चाहिए जिससे मेडिकल एजुकेशन भी इम्प्रूव किया जा सके, मेडिकल केयर भी इम्प्रूव किया जाए, स्टाफ डॉक्टर बढ़ाया जाए, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ बढ़ाया जाए, किस तरह करे, कितना खर्चा आएगा, ओनली आफ्टर सीइंग द occupancy of beds. Occupancy of beds means how many patients were admitted. Patient, all the medical care is given properly and qualitative,
no doubt patient get the admission in that particular hospital and be cured. जितनी ज्यादा भर्ती होंगे मरीज होगा उतना ही फायदा भी होगा, और तब वो एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल का वो तय कर लेगा आफ्टर सीइंग मेडिकल रिकॉर्ड की किस तरह की हमें एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है आफ्टर सीइंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैं इतना ही आज लेक्चर ले रहा हूँ। रिसर्च टीम और जो भी चीजें वो बाद के क्लास में सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, सुन रही है दीक्षा? यस सर। सुन रही है? तो ये मैंने ये कर लिया रिसर्च टीम, ये नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को। सुन रहे हैं भाई फैजल? यस सर। तानिया सुन रही हो? Yes, sir. तानिया? Yes, sir. हाँ, अभिषेक? Yes, sir. सामनी? यस सर। इसका? Yes, इसका? sir. यस सर। भावना? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. मनु? मनु यस सर। सुने? आपने सुना कि नहीं सुना? यस सर। सब समझ में आ गया? यस सर। दिव्या आपको? यस सर। तस्कीन आपको आया? आने बढ़े सब सर, लोग वो समझ भाग लें गई। फिर। हाँ, फिर आप लोग ये देखिए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, कुछ भी पूछना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे। अब मैं बंद करता हूँ, आगे की तरह रिसर्च जो है रिसर्च टीम के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी कैरी ऑन दिस। ठीक है, ओके, अब क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ गए भाई? Thank you, sir. यस सर। ओके, हाँ गुड ठीक है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम।